ہے مصطفیٰ کا نور چلتا رہا ہے ہم کیسے چلے جاؤ محترم اللہ کو آپ آئیں گے تو نہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم مر گئے ہماری قبریں مکے میں ہوگی تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ اگر مکے کی گلیوں سے گزر جائیں گے تو نبی کا کندھے کی مٹی ہمارے قبروں پر آ جائے گی قسم خدا کی ان کا عقیدہ تھا اگر نبی کے قدموں کی مٹی ہماری قبر پر آ گئی تو اللہ اس کی برکت سے ہماری مغفرت تو جو دل پہ رہنا چاہیے وہ زبان پر رہنا چاہیے زبان پر کچھ دل پر کچھ یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیے آقا کریم سرکار پیدا ہو رہے ہیں مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کو اللہ نے بڑی بابرکت والا بنایا اور آمنہ کو بھی اللہ نے کتنی بابرکت والا بنایا اس لیے کہ آمنہ کا مقابلہ کوئی ماں نہیں کر سکتی ہے اس لیے کہ ماں ہے اس وجہ سے نہیں کہہ رہا بلکہ سید انبیاء کو جنا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اے آمنہ تیرا مقابلہ محترم حضرات کی ابراہیم کی ماں نہیں کر سکتی اسحاق کی نہیں کر سکتی اس لیے کہ کسی کی ماں نے کریم جنا ہو کسی کی ماں نے ابراہیم جنا ہو کسی کی ماں نے اسحاق جنا ہو کسی کی ماں نے خلیل جنا ہو مبارک ہو اللہ تم نے اللہ کا حبیب جنا ہو محترم حضرات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہے جانتے ہیں سرکار کا ذکر ہوتا رہا ہے آقا کریم کا زمانہ چلتا گیا مصطفیٰ کی باتیں ہوتی رہی ہے اور لوگوں ہم نے تو سرکار کے اقوال کو بھلا دیا مصطفیٰ کی حدیث کو بھلا دیا ہمارے حالات تو یہ ہے محترم حضرات مسجدوں کے قریب رہنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان پر ہم عمل کریں گے ٹیکے ہم کریں گے قصبے ہم کریں گے قرآن کو ضرورت کے مطابق ہم پڑھیں گے لیکن جب اللہ کے گھر سے بلاوا آ جائے تو نماز ہم نہیں پڑھیں گے ہمارے حالات تو یہ ہے مگر سرکار کا زمانہ چلتا رہا لوگ کہتے ہیں جابر نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو پیدا کیوں کیا ایک سوال دوسرا کب کیا تو میرے سرکار فرماتے قال یا جابر ان اللہ خلق الاشیاء اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تب پیدا کیا پیدا ہوا پر جب لفظ کا بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ان کو نبی و آدم و بین الماء والطین جبکہ حضرت آدم علیہ السلام آدم بغیر کی منزلیں طے کر رہے تھے جب بھی تیرے نبی کا نور موجود تھا اے مبارک اللہ اکبر سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اول خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا میرے نور سے کائنات کو بنایا ہے محترم حضرات پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کا نور آتا رہا ہے پشت کے ذریعے شکم کے ذریعے مصطفیٰ کا نور چلتا رہا ہے لیکن میرے نبی کے ذکر ہوتے رہے مصطفیٰ سے مدد لوگ مانگتے رہے ہیں تو افضل حمیری 1000 سال سرکار سے آیا تھا تمام جہاں پر گھومتا تھا تو افضل حمیری ایک بادشاہ ہو رہا ہے جانتے بادیاں سنانا مقصد نہیں آپ دیکھیے نقطۂ نظر میں جو لینا چاہتا ہوں تو افضل حمیری تمام شہروں میں گھومتا تھا گھومنے کے بعد چاہتا یہ تھا کہ لوگ میرے قریب آ جائیں مجھے دیکھنے کے لیے آ جائیں لوگ میری باتیں کریں لوگ مجھ کو مانیں لوگ مجھ کو پہچانیں لوگ مجھ کو جانیں مگر جانتے ایسی گھومتے گھومتے جب کعبۃ اللہ میں پہنچ گیا تو اس سے ملنے کے لیے کوئی نہ آیا تمام جگہ پر دیکھیے اپنے نبی کے نور کو زمانہ چلتا رہا ہے مصطفیٰ کا نور چلتا رہا ہے تو افضل حمیری کہتا ہے یہ کون سی جگہ ہے کہاں کعبۃ اللہ ہے کون سا شہر ہے کہاں مکہ شریف ہے اللہ اکبر یہ مکہ شریف ایک شہر کا نام ہے اس کو اس زمانے میں یسرب کہا جاتا ہے جانتے کا لوگ یہاں دیکھنے نہیں آئے خواتین بھی نہیں آئے مرد حضرات اس کو دیکھنے نہیں آئے آپ کہتا ہے یہاں کے لوگوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے اس لیے میں یہاں کے لوگوں کو بٹھا دوں گا کعبۃ اللہ کو زمین بوجھ کر دوں گا اتنا کہنا تھا اسی وقت اس کے کان کے رستے سے خون آ گیا ناک کے رستے سے خون آ گیا ہے لہذا تمام لوگوں سے اس نے علاج کرا لیا حکیموں کو بلا لیا اس کے ساتھ تو حکیم چلتے تھے علماء کی جماعت چلتی تھی بے شمار افراد چلتے تھے ان سواریوں کے ساتھ وہاں تشریف لاتا تھا لیکن جانتے جیسے ہی کہا ہے حکیموں کو دکھا لیا سمجھ میں علاج نہیں آیا علاج نہیں کیا ہے تمام جہاں والوں کو دکھا دیا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن جانتے عالم ربانی نے آ کر کے کہا تھا تمہارے کھولنے سے تو بڑی بدبو آ رہی ہے لگتا کیوں ہے تم حکیموں کو مت دکھاؤ سوچو تم نے اپنی زبان سے کیا کہہ دیا ہے یار ہم بھی تو اپنی زبانوں سے گالی دیتے ہیں اسی زبان پر ذکر ہے اسی زبان پر گالی ہے اسی زبان پر رب کا نام ہے اسی زبان پر غیبت ہے اسی زبان پر رسول کا نام ہے اسی زبان سے احانت ہے اسی زبان پر آقا کریم کے چاہنے والوں کا نام ہے اسی زبان پر گناہ اور بدگمانیاں موجود ہے اور لوگ اس کو چھوڑ دیجیے جانتے
हो गए। हाजिर होने के बाद कहा था तुम्हारा इलाज होने की जरूरत किस चीज की है? आओ मैं तुमको बताता हूँ। तुमने अपनी जबान से कोई जुमला गलत तो नहीं बोल दिया है? कहा था मैंने काबे को बुरा कह दिया, मैंने काबा के हुक्म को बुरा कह दिया है। और लोगों 1000 साल से पहले मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, कहता है मैंने इनको बुरा कह दिया है। जानते जैसे तौबा करी है, नाक का खून बंद हो गया, कान का खून बंद हो गया, अब कहा चलो हम चलते हैं, यहाँ हमारा ख्याल पूरा हो गया, हमारा काम हो गया है, अब चलना चाहिए। लेकिन तमाम लोग चलने लगे, घुड़सवारी वाले चलने लगे, वजीर भी चलने लगे। हम कैसे चले जाए? मोहतरम हज़रात, आका करीम की खुशबू आ रही है तो कहा था आप चले जाइए। अय्यूब अंसारी का नाम सुना है, इन्हीं की नस्ल हज़रत अय्यूब अंसारी पैदा हुए हैं। मोहतरम हज़रात, वक्त गुजरता चला गया। वो तो बाप ज़मीरी बादशाह ने कहा था अच्छा ठीक है तो पालोगे मुस्तफा को, आप पाएंगे तो नहीं, आप पाओगे तो नहीं, कैसे रुकना चाहते हो? हमारा अकीदा ये है कि अगर हम मर गए तो हमारी कब्रें मक्के में होंगी, तो अकीदा ये है कि मुस्तफा अगर मक्के की गलियों से गुजर जाएंगे तो नबी का कल्बे की मिट्टी हमारे कब्रों पर आ जाएगी। कसम खुदा की उनका अकीदा था अगर नबी के कब्रों की मिट्टी हमारी कब्र पर आ गई तो अल्लाह उसकी बरकत से हमारी मग़फ़िरत आप भी बताइए। 1000 साल पहले मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, 1000 साल पहले जिक्र हो रहा है। कसम खुदा की किसी ने अल्लाह अकबर, बेशक अंबिया मुरसलीन तो आते रहे मगर कसम खुदा की आमना के लाल का जवाब नहीं। तमाम लोगों ने इनके नाम से वसीले भी बनाए, मदद भी मांगी है। हजरत आदम के बेटे हजरत शीश से हजरत आदम ने कहा अल्लाह अकबर आप बताइए दो चीजों को मत भूलना। एक तो इस चीज को मत भूलना कि आका करीम आखिरी पैगंबर का नाम है। एहसान को मत भूलना। कौन? हजरत आदम जिनकी 300 बरस बाद तौबा कबूल हुई। 300 बरस गुजर गए लेकिन जानते तौबा कबूल हो गई। अब चाहते हैं तौबा कबूल होने के बाद खाना लाया जाए तो खाना बनाने आग तो थी नहीं उस जमाने में। आग न पत्थर में थी न लोहे में थी, न माचिस होती थी। तो क्या कहा अल्लाह अकबर, हजरत जिब्रील से कहा जिब्रील जहन्नम के दरोगा से मिले। किससे मिले? मालिक जहन्नम, मालिक की नाम उसका। कहा मुझे आग दे दीजिए। कहा कितनी आग लोगे? कहा गेहूं के दाने से कुछ ज्यादा। कहा अल्लाह अकबर, इतनी आग जमीन पर ले गए ना तो जमीन तहतुस सरा में घुस जाएगी। ये आग वो आग नहीं है। कहा आसमान टूट करके जमीन पर आ जाएगा। कितनी आग ले? कहा थोड़ी सी लो। कहा अच्छा राई के दाने से कुछ सिवा दे दो। कहा इतनी ले गए तो आसमान तो अपनी जगह पर रहेगा मगर आसमान कभी बारिश नहीं बरसा सकता। जमीन कभी फल नहीं हो सकते इससे। मोहतरम का और कम दे दो, थोड़ी सी आग लेके दुनिया पर आ गए, अल्लाह की रहमत के पानी से धोकर और उसको पहाड़ पर मार दिया और उस आग को लेकर के चले गए। जब से आज तक पहाड़ की वजह से पत्थर और लोहे का आग निकल गया। और एक नमाज छोड़ दे कोई इंसान तो 2,88,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ता है। अल्लाह अकबर। ये छोटी सी आग है मेरे भाई, बड़ा आसान है मुसलमान कहना। मुसलमान का हाल ये है कि अपना काम बनता है तो नमाज पढ़ता है कि मैं फला काम के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ। कसम होता है कि काम ना हो तो नमाज छोड़ देता है। अरे नमाज तुम्हारे कामों के लिए नहीं है, नमाज तो रब की खुशनुदी के लिए है। दिल नहीं करता है, दिल को मार कर अपने दिल पर कंट्रोल कर कर रब की रजा में रजा रहना ये तो नमाज है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने कहा जमानों में जिक्र होता रहा और कैसे हुआ है। अल्लाहु अकबर। मोहतरम हज़रात, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना चलता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो पैदा हुए लेकिन जानते हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत शीश भी आए लेकिन कोई एक जगह को अल्लाह पर सैराब करने के लिए आया। कोई ने किस चीज को पैदा किया, किसी ने किस चीज को पैदा किया, मगर कसम खुदा की जानते किसी चीज को सैराब किया, किसी ने किसी हिस्से को सैराब किया। मगर पैगंबर इस्लाम दुनिया पर आए तो सारी कायनात को सैराब कर दिया। आप जानते थे, सरकार फरमाते मैं तो माँ के पेट से भी जानता था, माँ के पेट से जानता था। वो क्या जानते थे? अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, बात समझ में आ रही है तो बोल दीजिए। आप ही बताइए, क्या आप बचपन में भी जानते थे? हाँ जानता था। कैसे जानते थे? मैं तो ये भी जानता हूँ सूरज कहाँ निकलता है, कहाँ डूबता है। तुम कहते हो डूबता है, मैं कहता हूँ छिपता है। तुम कहते हो चला जाता है, मैं कहता हूँ कि सजदे में चला जाता है। आप जानते थे? कहाँ
अपने माँ के पेट में लोगों की कलम जो चलती थी लोगों पर उसको समाप्त कर लेता था। ये पैगंबर मोहतरम अल्लाह कसम खुदा की आका करीम की वो जात है जो सब कुछ जानते हैं। मैं कहता हूँ पास का भी जानते, दूर का भी जानते, आसमान का भी जानता है। पानी खत्म हो गया, कहा पानी खत्म हो गया, कहा पानी खत्म हो गया। मेरे सरकार फरमाते निगाहे नबुव्वत को बंद किया, कहा पहाड़ की पल्ली तरफ चले जाओ, उधर की साइड एक मशकीज़ा एक शख्स पर उससे ले आओ। मशकीज़े का पानी करामत सुनाना मुआज़ा सुनाना मकसद नहीं, पानी ले लिया। पानी लेने के बाद अब उसको वो भी दे दिया। सरकार का इल्म गैब देखी जब पाला रख कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला हमने खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आका करीम क्या है पहाड़ के उस साइड का मेरे सरकार समाप्त फरमा रहे हैं। मेरे आका है अल्लाह को ऊपर मशकीज़ा देने गए, कहा हुजूर पानी पिला दिया, कहा पानी पिला दिया, कहा उनकी प्यास बुझा दी, कहा बुझा दी हुजूर अब मेरी भी प्यास बुझा दीजिए। बहुत तेजी के साथ अपने मजमून और आखिरी पर पहुंचूंगा। क्या हुजूर मेरी भी प्यास बुझा दी? आका फरमाते तेरी प्यास कैसे बुझेगी हुजूर? उनकी प्यास बुझी है मशकीज़े के पानी से, मेरी प्यास बुझेगी कलमा ईमानी से। ये मेरे नबी है, इल्मे गैब का हाल ये है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नबी नहीं है बल्कि कहा गया रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब ये है आदम शान वाले, नूह शान वाले, इदरीस शान वाले, तमाम अंबिया और सलीम शान वाले, मगर हुजूर आपका जवाब नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने पैगंबरों को लाजवाब बनाया, हाँ नूह को लाजवाब बनाया, तमाम अंबिया को जो मिला है आपकी तरफ से मिला है। आपका दर ना होता आदम ना होते, आपका दर ना होता नूह ना होते, आपका दर ना होता इदरीस ना होते, आपका दर ना होता ज़करिया ना होते। हुजूर जिसको जो मिला है वो तुम्हारी वजह से मिला है। सबको जो मिला है और आका के मुताबिक सब कुछ है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, शम्सो कमर है, बहरुखर है, तमाम अशिया पर अल्लाह के रसूल की जरूरत है। मेरे नबी को तमाम अशिया चीज पुकारी जा रही है। आका की फुर्सत है अल्लाह अकबर। वो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। आप मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। हुजूर हजरत आदम को जो मिला दोनों नबी से, हजरत आका करीम के कदमों की बरकत से मिला, जिसको जो मिला मुस्तफा की वजह से मिला। हुजूर वाला आदम पैदा हुए एक हिस्से के लिए पैदा हुए, नूह पैदा हुए एक हिस्से के लिए पैदा हुए, ज़करिया पैदा हुए एक हिस्से के लिए पैदा हुए। तमाम अंबिया मुरसलीन का सिलसिला चलता रहा, तमाम अंबिया आते रहे, मगर मेरे नबी का दौर जब आया ईसा रूहुल्लाह पर रुक गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से कबल तमाम ने मुजरा आका का सुनाया, लूत ने मुजरा सुनाया, इदरीस ने सुनाया, इसहाक ने सुनाया, तमाम अंबिया मुरसलीन ने सुनाया। और किसी को खुल्लत मिल गई, किसी को आदमियत मिल गई, किसी को शिजाअत मिल गई, किसी को नूर, किसी को जमात मिल गई, किसी को ज़ुहूर मिल गया, किसी को जलाल मिल गया, किसी को तक़वा मिल गया। मेरे पैगंबर का मुजरा सुनाते रहे कि खातमुन नबीय्यीन आएंगे, ताजदार खत्म नबुव्वत आएंगे। मेरे नबी का जब दौर आता है मेरे अजीज जरा गौर तो करना। आका करीम के तमाम बात बताया कि हजरत आदम पैदा हुए, रहमत की बारिश हो गई, हजरत ज़करिया पैदा हुए, रहमत की बारिश हो गई, हजरत नूह पैदा हुए, रहमत की बारिश हो गई। अब आसमान पुकार रहा है कि अल्लाह जगह जगह बारिश कब तक होती रहेगी? कोई ऐसा पैगंबर भेज दे कि जिधर उठ जाए उधर ही रहमत की बारिश होती चली जाए। अल्लाह हुआ अंधेरा है, जुल्म है, आपस में रकबत है, आपस में इख्तिलाफात ने मोटा मसला जोर दे दिया है। भाईचारगी का सिलसिला खत्म हो गया, इहानत का सिलसिला बढ़ गया है, चोरियों का सिलसिला बढ़ गया है। मेरे आका ने इसी के 30 साल से 35 साल और हिरा में जाकर के वक्त को गुजारा, इसलिए कि या रसूल अल्लाह अगर कान भी खराब है, उम्मत मुस्लिमा की आंख भी खराब है, और कसर के लिए समाई भी हिरमातो और आतु वबर के जान असाबे हम ये आका ने मेरे समाई हज़ार मौत और मोहतरम अज़ाम में हज़रत रसूल का तजल्ली साहब आगे कहता है या अय्युहा साहब बोले आगे कहता है अल्लाह के खुदा अल्लाह आप आयतों को पढ़ लीजिए। ऐसे मोमिन आए हैं जो मुनाफिक बदल गए हैं, जो मोहतरम अज़ाम थोड़ी देर के लिए रब के हो गए, फिर गैरों के हो गए हैं, लेकिन जानते अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह मेरी कौम अंधी हो गई, किसी की आंख नहीं है, किसी की ज़बान नहीं है, लेकिन आंख तो थी ज़बान भी थी, क्यों कह रहे हैं? तो कुरान ने फलसफा क्या जिक्र किया है? ये क्या है? हक देखने का, हक सुनने का, हक बोलने का, ये जुमले आसानी से बोल चुके हैं। मैं तेजी में बोल रहा हूँ, आप नाज़िल रखे आले रसूल को भी बोल रहा है। मोहतरम हज़रात क्या कहा है? हुजूर अर्ज़ करते हैं अल्लाह अगर डॉक्टर के पास चले जाए, कान की भी दवा ले, ज़बान की भी ले, आँख की ले, तो रिएक्शन कर जाएगी, सब की खाएंगे तो एक ही दवा हो, एक ही कैप्सूल हो, एक ही खुराक हो और तमाम दवाएं तमाम बीमारियों को दूर कर दे। ऐसे ही ज़मीन ने कहा कि अल्लाह भेज दे, आसमान ने कहा अल्लाह भेज दे, सूरज ने कहा अल्लाह भेज दे, चांद ने कहा अल्लाह भेज दे। सूरज की रोशनी कह रही है, चांद की चांदी कह रही है, ज़माने ने मिलकर के कहा था कि अल्लाह किसी को तो भेज दे। चांद के तारीकी थी, जुल्म बन चुका था, तमाम अफराद ज़माना मिलकर के पुकार रहे
पुकार रहे हैं, सबकी ज़बानों में मुस्तफा है, सबके कहने में मुस्तफा है, तमाम के कौल में मुस्तफा है, तमाम के इंसान में मुस्तफा है, तमाम लोग पुकार रहे हैं। एक ऐसा नाजुक दौर आ गया है जहाँ आपका एक की जरूरत आ चुकी है, जहाँ उनके तारीख पुकार रही है, रोशनी पुकार रही है, मुस्तफा को भेज दे। जुल्म का आलम देखा, अगर किसी के शोहर का इंतकाल कर जाए तो उसे दुनिया जिंदा होने के बाद उसके साथ बड़ी उसको सजाएं दी जाती थी। ऐसा नाजुक वक्त था, पुकार रही थी, एक दिन मस्जिद का जलाल आ ही गया, मेरे मुस्तफा की आमद का सवाल आ ही गया। हर सवाल से जवाब आ गया, मुस्तफा में इनकलाब आ गया, उनके दरबार में जाने क्या बात है जो गया लोग पर कामयाब आ गया। मेरे सरकार की आमद का सवाल है, जानते हैं जहाँ तारीख था, जुल्म का सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर में उजाला था। मेरे आका करीब की पैदाइश का सिलसिला हुआ, तमाम अफराद समाज ने पुकारा, तमाम लोगों ने पुकारा, जिंदा होने वाली बेटियों ने पुकारा, एक परवरदिगार ये जुल्म का सिलसिला कब तक चला गया, परवरदिगार ऐसे को भेज दे जो जुल्म को खत्म कर दे, ऐसे को भेज दे जो गीबत को खत्म कर दे, ऐसे को भेज दे जो सिलसिला गुनाह को दूर कर दे, ऐसे को भेज दे जो तमाम गुनाहों को दूर कर दे। ए अल्लाह ऐसे नबी को भेज दे कि जिसकी वजह से कायनात को तेरी रहमतें बरसाए। भेज दे परवरदिगार, ज़मीन कह रही है, आसमान कह रही है, बख्शिया कह रही है, ए अल्लाह तारीकी ये ज़मीन जुल्म में कदा है, ए परवरदिगार रोशनी लेकर के पैगंबर को भेज दे। मोहतरम हज़रात, बख्शिया ने पुकारा, किसको पुकारा? पैगंबर इस्लाम को पुकारा जा रहा है, आका करीम को याद किया जा रहा है। मेरे पैगंबर को अपनों ने पुकारा, बहनों ने पुकारा, बच्चों ने पुकारा, सहाबाओं ने पुकारा, तमाम अफराद समाना ने मिलने के बाद कहा है अल्लाह पैगंबर इस्लाम को भेज दे, ए अल्लाह रसूल दो जहां को भेज दे, ए अल्लाह सैयदुल मुरसलीन को भेज दे, ए अल्लाह साहा यासीन को भेज दे, ए अल्लाह शफीउल मुस्लिमीन को भेज दे, ए अल्लाह कायनात के वजूद देने वाले को भेज दे, ए अल्लाह पैगंबर इस्लाम को भेज दे, ए अल्लाह साहिब कुरान को भेज दे, ए अल्लाह दुनिया को जिसकी वजह से वजूद मिला उस पैगंबर को भेज दे। आका करीम को पुकारा जा रहा है, मुस्तफा को बुलाया जा रहा है, सैयद अंबिया को पुकारा जा रहा है। मोहतरम हज़रात, ऐसे आलम में तमाम लोगों ने पुकार करके कहा, झूठ वालों ने कहा, रिबत वालों ने कहा, इहानत वालों ने कहा, इस्तेमाल वालों ने कहा था, गुनाहों की गर्दन में जो फंसे थे पैगंबर इस्लाम को पुकारा था, और जिंदा तरघोर होने वाली बच्चों ने कहा कि अल्लाह ये ज़माना जालिमों से भरा है, परवरदिगार कुफ्र के आतंकवादियों से भरा है, रब्बे करीम हम चाहते हैं कोई ऐसे पैगंबर को भेज दे जो रहमतें लेकर के आ जा, जो मुसलमानों के लिए भी कायनात के लिए रहमत बनकर के आ जा। मोहतरम हज़रात, आवाज़ कुदरत जब पुकारा जा रहा है, मशरिक़ इलाही को पुकारा जा रहा है, ऐसे नाजुक वक्त में मोहतरम हज़रात जब पूरा कुरान को दोस्ती है, आजकल की बच्चा कहती है अल्लाह परवरदिगार आलम किसी ऐसे को भेज दे जो कुफ्र के आतंकवाद जो है इनके पंजे को तोड़ने वाले को आवाज़ कुदरत आती है, अरे घबराओ नहीं, मैंने ऐसे पैगंबर को भेज दिया कुफ्र के आतंकवादियों के पंजे को तोड़ने वाला रहमतुल्लिल आलमीन को भेज दिया। जान कहती है अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मकाम को बुलंद फरमाए। मतलब क्या कहा? अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की सब नहीं दे दोगे, तुम भी कुछ लोग सुभान अल्लाह ये बोल रहे, तुम भी पीछे पीछे बोल दिया करो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप भी करते हैं सुभान अल्लाह बोलते रहिए, सुभान अल्लाह कहते हैं। जब आका की शान को पढ़ा, मुस्तफा को देखा तो क्या उठे अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देख ली है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और मोहतरम हमारा मयार क्या है? ये है जो आका करीम का होगा क्या अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इकराम रसूलुल्लाह।
मोहतरम हज़रात, तो आका का सवाल आ गया, मेरे सरकार आगे जानते जैसे सैयद अबरार बाक़ियात शहंशाह ज़ी वक़ार, ये कोई आम नबी पैदा न हुआ, खास नबी पैदा हुआ है, वो नबी पैदा हुआ है मोहतरम हज़रात जिसके बारे में किसी ने कहा कि अल्लाह वो दानियाल पैदा हुए, इलियास पैदा हुए, ज़करिया पैदा हुए, तो जानते मेरे आला हज़रत क्या कहते हैं? मेरे आला हज़रत कहते हैं बेशक तमाम अंबिया मुरसलीन पैदा होते रहे, मगर आज वो पैगंबर पैदा हुआ जिसके बारे में कहते हैं सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे आला मौला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमके लिए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है तेरे को मुँह चाहिए, तेरे वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। मेरा नबी जब पैदा हुआ, लिहाजा आप देखिए आका करीम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फिर रोए। क्या किया है मेरे सरकार ने? मुस्कुराए, मगर उम्मत मुस्तफा मुस्कुराए तुम्हारे लिए, रोए तुम आका करीम तुम्हारे लिए। सैयद अबरार या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। अरे कुर्सी और मंगा लो, ये मंगवाली कुर्सी आएंगी बहुत है। उठाओ सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मुस्कुरा कर नहीं बोलोगे? बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कायनात को वजूद मिला है, इन्हीं के नाना का सदका है। अरे आप जा रहे हो तो आने के वक्त, ये आने का टाइम है लिहाजा। अच्छा जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। उम्मीद है आने वाले चले भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह लौट करके यहीं आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्या कह रहा था? लेके कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी को पैदा करने का क्या मकसद है? मकसद क्या बयान किया अल्लाह के कुरान ने? जो लोग कहते हैं अल्लाह तेरा करम हो गया, तूने फضل फरमाया, नेमतों से आरास्ता फरमाया, तो परवरदिगार कहता है कमा अरसलना फीकुम रसूला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताज्जुब करना है तो इस बात पर करो, मैंने तुम्हें खाना दिया, पीना दिया, नेमतें दी। अरे इससे बड़ी बात ये है कि तुम्हें मैंने अपना महबूब दे दिया है, अपना महबूब दे दिया है। और मकसद क्या बयान किया? वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरा नबी जो आ रहा है क्या लेकर के आ रहा है? हिदायत लेकर के आ रहा है। सुभान अल्लाह। कुरान मुक़द्दसा किसके लिए? कुरान में जो शिफा है और रहमत है वो मोमिनीन के लिए है। मोहतरम हज़रात, के डोरी डंडे करते हैं लोग, एक दूसरे के पास जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कोई मुशरिक आ रहा है तो भी कुरान पढ़ रहे हैं, गैर मुशरिक आ रहा है उसके लिए कुरान, कुफ्फार के लिए कुरान पढ़ रहे हैं। हालांकि कुरान का ऐलान है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। मोहतरम हज़रात, क्या कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान को नाज़िल किया वो मोमिनीन के लिए किया है। इसमें जो शिफा और रहमत रखा है ना वो मोमिनीन के लिए रखा है। लेकिन मुस्तफा की जहां बात आती है, कुरान में रब कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मैं तुम्हें मोमिनीन के लिए नहीं सारी कायनात के लिए रहमत बना दिया। क्या कहने वाला, सुभान रहमत बना करके भेज दिया। बयान क्या किया? वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़, और क्या कहा गया? लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। कहा इंसान ये न सोचे कि हमारा मज़हब कमजोर हो गया, हमारी दीन जो हमारा अदियान में दीन है ये कमजोर हो गया। रब अदीन कहता है मज़हब इस्लाम इन तमाम मज़हबों पर गालिब आ जाएगा। तमाम अदियानों में जो असल दीन है वो दीन इस्लाम है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक बेशक जो दीन है वो इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो लेकर के भेजा है, जानते सैयद अबरार पैदा हुए, मेरे आका करीम जो पैदा हुए, आला हज़रत दिलका पड़ती है बात जो चल रही थी कि सैयद अबरार आका करीम पैदा हुए, मुस्कुराए भी और रोए भी है। जानते हैं मोहतरम हज़रात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट के लिए सुन्नियत की जान, इश्क की पहचान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं जिसकी तस्वीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पैदा हो तशरीफ फरमा है। मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जब नजर पड़ती है, आला हज़रत पुकार उठते हैं, हाथ जिस्म को उठा गनी कर दिया मुझे बहरे समाहत पे लाओ। मोहतरम हज़रात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में जो
की और लोगों की दबावत पे लाखों सलाम उन लोगों को पैगंबर पैदा हुए। आज तरह की बात कहते हैं, लोग कहते हैं जश्न मिलाद मत मनाओ, जश्न मुस्तफा की आमद की जो खुशियां है इसको ना मनाओ। कोई कहता है आग को मनाओ, कोई कहता है आग को सरकार की वफात हुई, कोई कहता है आग को विलादत हुई। मैं कहता हूँ ठीक कहते हो तो फिर आप ही को मना ले, आप ही को मना लो, हम आपके साथ भी शरीक हो जाएंगे। जहाँ तक सवाल आता है कहीं की मिलाद का है, कहते हैं बताओ तो आपसे दलील मांगते हैं, उलमा से दलील मांगते हैं। मैं कहूँगा जायज़ चीजों के लिए दलील देना जरूरी नहीं है। अरे जो हराम चीज होती है दलील तो उसकी दी जाती है। अल्लाह जैसे कुरान में कहता है अल्लाह ताला एक जगह और फरमाता है तो क्या समझा, हराम चीजों के लिए दलील देना जरूरी होती है। जो सही चीज है उनके लिए दलील देना जरूरी नहीं है, बल्कि वहां दलील देना है तो उनको देना है जो कहते हैं मिलाद मुस्तफा मनाना शिर्क है, मिलाद मुस्तफा मनाना बिदअत है, उनका काम है। तो कोई एक हदीस या कुरान हदीस से अल्लाह पर हराम तो बड़ी चीज है, खिलाफ होना भी साबित नहीं कर सकते हैं। तमाम कुफर का तरीका रहा है, इमाम ज़रक़ी का तरीका रहा, इमाम ज़हाबी का तरीका रहा है, इमाम सरकानी का तरीका रहा है, इमाम नस्वी का तरीका रहा है, इमाम कुर्तुबी का तरीका रहा है। तमाम ने जिसने मिलाद मुस्तफा मनाया है, बल्कि कहा है शेख अब्दुल हक मदनी से बेलवी कहते हैं जो इसको मनाता है वो इस पर अमल करने के बाद बयान करने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला पूरा साल इसकी बरकतें सुभान अल्लाह सुभान ऐसा कहने से अल्लाह कहना नहीं है, आपको मानना भी नहीं है। और जहाँ तक दलील का सवाल है तो आप ही बताइए। मैं कहता हूँ यहाँ की बात कर रहा हूँ, मेरे नबी का जिक्र हर शय में हुआ, आसमानों में हुआ है, जमीनों में हुआ है। अल्लाह मलाइका मुकर्रबीन ने किया, इंस ने किया, जिन ने किया, अल्लाह के रसूल का तज़किरा होता रहा है। सहाबा की जमात मौजूद है, आप करीम का जिक्र कर रहे हैं, मेरे नबी पूछा क्या कर रहे हो, काम हुजूर आपको याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, ऐसे और भी रिवायात है, लिहाजा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता रहा है। मेरे जाने से कबल नहीं बता दूं, हमेशा याद रखना आपको एक तो दीनदार बनना, क्या बनना है, दीनदार बनना है, अपने घर में इस्लामी माहौल को पैदा करें। और दूसरी चीज ये है कि आप हज़रात अपने बच्चों को तालीम जरूर दें। और तीसरी चीज ये है बदअकीदा से दोस्ती, खान पीन, उनके गरीब मैयत है, इन तमाम जगह पर में जाना नहीं, इसी का ख्याल रखना और इससे हलाल का भरपूर ख्याल करना। याद रखिए इन चीज का आपको ख्याल भरपूर करना, लिहाजा आप इस पर अमल करेंगे कि नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ नाचीज़ इल्म से पहले में अगर कोई गलती हो गई हो तो परवरदिगार माफ फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम की जिंदगियों में इनकलाब को पैदा फरमाए, मज़हब इस्लाम को उरूज अता फरमाए। रब्ब करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला ये जो उलमा मौजूद है इनके इल्मों में इजाफा अता फरमाए, इस बस्ती पर अपना खास रहम व करम फरमाए। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो उलमा को शाहिद बनाकर इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फिर, अभी बढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं क्यों न चलूं अहमद मुख्तार के पीछे, चलते हैं सभी अपने मददगार के पीछे, एक माही तो नहीं सैयद अबरार के पीछे, ये सारा जमाना है मेरे सरकार के पीछे देश।